Good morning, students. In last lecture, we learned about division of integers and properties of divisions. This is the last lecture of your first chapter. Today, we are going to solve exercise 1.4. Question 1, you already done in homework. Let's start from question 2. Question is verify that A divided by B plus C is not equal to A divided by B plus A divided by C for each of the following values of A, B and C. ये हमें वेरीफाई करना है कि A divided by B plus C जो है वो इक्वल नहीं होता है A divided by B plus A divided by C के, और हमें वैल्यूज दो क्वेश्चंस दिए हैं और A, B, C की वैल्यूज दी हुई हैं। वो वैल्यूज हमें इस इक्वेशन के अंदर लगानी है और ये प्रूफ करना है कि दिस इज नॉट इक्वल टू this. Okay, so first is A is equal to 12, B is equal to -4 and C is equal to 2. ये three values are given here, B, A, B and C. Put these value in this question. So first we take left hand side, A divided by B plus C, this is left hand side, and A divided by B plus A divided by C is right hand side. So first we take left hand side, A divided by B plus C. So what is the value of A is given? 12. So you put 12. Now divided by, what is the value of B? Value of B is -4. So you put -4 here. Plus what is the value of C? 2. So put 2 here on the place of C. तो 12 divided by -4 plus 2 हो गया. Always remember, मैंने आपको बताया था जब भी ब्रैकेट होता है तो फर्स्ट यू सॉल्व ब्रैकेट. So in the bracket one integer is negative, one integer is positive. तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस. तो 4 minus 2, 2, बट नेगेटिव. वाई? बिकॉज 4 इज ग्रेटर देन 2. नेगेटिव वाला नंबर बड़ा है इसलिए साइन किसका आएगा? माइनस का. तो इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिला? -2. नाउ 12 डिवाइडेड बाय -2. नाउ दे आर अनलाइक इंटीजर्स हो गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. तो हमारा क्वेश्चन क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा. इट मींस 12 डिवाइडेड बाय -2. 2 से 12 कितने टाइम्स गया? 6 टाइम. सो -6 इज द आंसर. जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो हमें क्या मिला? -6. नाउ सॉल्व right hand side. What is right hand side? A divided by B plus A divided by C. So value of A is 12 divided by value of B is -4 plus value of A is 12 and value of C is 2. Okay, now solve this first bracket. They are unlike integers, एक positive एक negative. तो question क्या आएगा हमारा? Negative. तो 12 divided by -4 plus 12 divided by 2. ये both are like integers, दोनों positive है ना? तो 12 को 4 से डिवाइड किया तो 4 3 12, तो हमें क्या मिला? -3 प्लस 2 6 12. तो इसका क्वेश्चन आया 6. नाउ -3 प्लस 6 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस. तो 6 में से 3 माइनस किया तो हमें क्या मिला? 3. पर कौन सा? पॉजिटिव. क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नंबर बड़ा था. ये मैंने बताया आपको, जब भी दो इंटीजर एक प्लस और एक माइनस होता है तो माइनस होता है, पर ध्यान रखना है जो नंबर, जैसे माइनस वाला नंबर बड़ा है तो माइनस आएगा, प्लस वाला नंबर बड़ा है तो साइन प्लस का आएगा. तो -3 + 6 आंसर इज 3. तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके हमें क्या मिला? -6 एंड राइट हैंड साइड को सॉल्व करके हमें क्या मिला? 3. It means -6 is not equal to 3. It means left hand side is not equal to right hand side. Hence, A divided by B plus C is not equal to A divided by B plus A divided by C. यही हमें प्रूफ करना था, है ना? इसको ही हमें प्रूफ करना था, तो हमने प्रूफ कर दिया वैल्यूज को लगा के कि ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होती है ना, A डिवाइडेड बाई B प्लस C, तो A डिवाइडेड बाई B प्लस A डिवाइडेड बाई C की, इसको हम सॉल्व करें और इसको सॉल्व करें तो आंसर दोनों का सेम नहीं आता है. नाउ नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन. इसमें A की वैल्यू क्या है? -10, B is equal to 1 and C is equal to 1. So first we take left hand side. Left hand side is A divided by B plus C.
So what is the value of A? -10. Value of B is 1. Value of C is 1. Put all the values of A, B, C in the equation. Okay, so this is -10. Now first we solve bracket. Bracket में क्या है? 1 plus 1. 1 plus 1 is equal to 2. Not -10 divided by 2. They are unlike integers हो गए. एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है. तो क्वेश्चन क्या आएगा हमारा? नेगेटिव. तो -10 divided by 2. 2 5s are 10. So answer is -5. समझ में आ रहा है? हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया वैल्यूज पुट करके, तो हमें क्या आंसर मिला? -5. नाउ we take right hand side. Right hand side is A divided by B plus A divided by C. So -10 divided by 1 plus -10 divided by 1. तो -10 को 1 से डिवाइड किया, तो मालूम है किसी भी नंबर को जब हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर वो नंबर ही मिलता है. तो -10 आया. यहाँ भी -10 को 1 से डिवाइड किया तो क्या आया? -10. नाउ सॉल्व दिस. -10 प्लस -10. अब मैंने बताया जब ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन होता है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता है. इट मींस दिस इज -10 -10. अब जब दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं. और साइन किसका रहता है? माइनस का. तो -10 -10 -20. इट मींस राइट हैंड साइड को सॉल्व करके वी गेट -20 एंड राइट हैंड साइड को जब हमने सॉल्व किया तो वी गेट -5. सो -5 इज नॉट इक्वल टू -20. -5 -20 के इक्वल टू नहीं है. इट मींस लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. हेंस वी प्रूव A divided by B plus C is not equal to A divided by B plus A divided by C. समझ में आया दोनों क्वेश्चन? क्या था दोनों क्वेश्चन में कि हमें ये दिया था इक्वेशन A divided by B plus C is not equal to A divided by B plus A divided by C. ये प्रूफ करने थे और हमें दो क्वेश्चंस दिए थे. दोनों क्वेश्चन में A, B, C की अलग अलग वैल्यूज दी थी. तो वो वैल्यूज पुट करके हमें सॉल्व करके प्रूफ करना था कि दिस इज नॉट इक्वल टू दिस. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, फिल इन द ब्लैंक्स में हम देखेंगे 369 डिवाइडेड बाय व्हाट कि वी गेट 369. 369 को मैं किससे डिवाइड करूं कि मुझे 369 ही मिले? क्या लगता है आपको? 1 से, है ना? जस्ट वेट. हाँ, कलर 369 को मैं किससे डिवाइड करूं? 1 से डिवाइड करूं तो मुझे 369 मिलेगा. क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है किसी भी इंटीजर को हम अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? वही इंटीजर मिलता है, सेम, है ना? अगर हम किसी भी इंटीजर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें वही इंटीजर मिलता है. तो 369 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगी तो वी गेट 369. ओके, नाउ नेक्स्ट -75 डिवाइडेड बाय व्हाट कि वी गेट -1. अब -75 को मैं किससे डिवाइड करूं कि मुझे -1 मिले? तो पॉजिटिव 75 से कर दूं, क्योंकि किसी भी नंबर को जब हम उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 1. तो इसका मैंने बताया था, एक अगर हमारा नेगेटिव वो है इंटीजर, अनलाइक इंटीजर्स मैंने पढ़ाया था डिवीजन में, तो उसको अगर हम उस पॉजिटिव इंटीजर से मैं उसको अगर डिवाइड करूं तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो 1 मिलेगा. समझ में आया कि -75 को मैंने पॉजिटिव 75 से डिवाइड किया तो मुझे -1 मिला. क्यों मिला? क्योंकि ये अनलाइक इंटीजर्स हो गए, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है. तो आंसर इज 1. नाउ -206 डिवाइडेड बाय व्हाट कि वी गेट 1. सेम थिंग, -206 को मैं किससे डिवाइड करूं कि मुझे 1 मिले पॉजिटिव? यहाँ पे देखो ये नेगेटिव -75 था तो इसलिए मैंने पॉजिटिव 75 से डिवाइड किया तो मुझे -1 मिला. यहाँ -206 डिवाइडेड बाय व्हाट कि वी गेट 1. तो इट मींस वी डिवाइड बाय दिस -206. दोनों नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो ही तो हमें आंसर प्लस मिलेगा, है ना? क्योंकि हमने पढ़ा है किसी भी इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर को
अगर मैं उसी के नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करूं तो मेरा जो आंसर आता है वो पॉजिटिव आता है। यहाँ पे सॉरी नेगेटिव आएगा ना, ये नेगेटिव है क्योंकि ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, तो अनलाइक इंटीजर्स हो गए, अनलाइक इंटीजर्स का जो आंसर होता है वो नेगेटिव आता है। यहाँ पे हमें पॉजिटिव 1 भी आए कि -206 को मैं किससे डिवाइड करूं कि मुझे 1 मिले, तो -206 से डिवाइड करूंगी। नाउ -87 डिवाइडेड बाय व्हाट कि वी गेट 87, क्या लगता है आपको? माइनस ए को मैं किससे डिवाइड करूं कि मुझे आंसर में ए मिले, मतलब पॉजिटिव ए मिले? -1 है ना, ये मैंने आपको इनवर्स वो सिखाया था कि जब भी किसी हम नेगेटिव इंटीजर्स को डिवाइड करते तो हमें उसका पॉजिटिव वो मिलता है, इनवर्स मिलता है। देखो -87 डिवाइडेड बाय व्हाट कि वी गेट 87, तो -1। अगर मैं -87 को -1 से डिवाइड करती हूँ, दोनों लाइक इंटीजर्स हो गए, नेगेटिव नेगेटिव, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा? पॉजिटिव। नाउ डैश डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू -87, तो किसको मैं 1 से डिवाइड करूं कि मुझे -87 मिले? तो क्या लगता है आपको? -87, क्योंकि 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 तो पॉजिटिव है, लेकिन आंसर में क्या है? -87 है, तो 1 से जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं हमको वही नंबर इटसेल्फ मिलता है, तो हम -87 को 1 से डिवाइड करूंगी तो मुझे -87 मिलेगा, क्योंकि -a डिवाइडेड बाय 1 is equal to -a, है ना, क्योंकि 1 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमें वो क्या मिलेगा? वही इंटीजर मिलेगा। ओके, नाउ f what डिवाइडेड बाय 48 इज इक्वल टू -1, तो मतलब सेम नंबर को ही डिवाइड करना होगा तो ही 1 मिलेगा, लेकिन ये पॉजिटिव है तो वो कैसा होगा? नेगेटिव, तो ही हमें एक अनलाइक इंटीजर्स बनेंगे और अनलाइक इंटीजर्स बनने पर हमें वो मिलेगा। तो -48 को अगर मैं 48 से डिवाइड करूंगी तो हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा -1। नाउ 20 डिवाइडेड बाय व्हाट कि वी गेट -2, 20 को मैंने किससे 20 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, है ना, और आंसर क्या है? नेगेटिव, इसका मतलब नेगेटिव नंबर से हमने डिवाइड किया होगा, तो पता चल रहा है आपको किससे किया होगा? -10, है ना, क्योंकि 10 2 जा 20, तो लेकिन हमने कैसा 10 लिया? नेगेटिव, क्योंकि आंसर हमारा क्या है? -2। -2 कब आएगा? जब ये अनलाइक इंटीजर्स होंगे, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव इंटीजर हमें दिया है 20 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो वी डिवाइड 20 बाय -10, तो वी गेट -2। नाउ व्हाट डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3, किसको मैं 4 से डिवाइड करूं कि मुझे -3 मिले? अब -3 मतलब नेगेटिव इंटीजर, और ये पॉजिटिव से हम डिवाइड, जो हमारा डिवाइजर है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये क्या होगा? नेगेटिव। तो 12 -12, क्योंकि 4 3 जा 12, है ना, 4 3 जा 12, तो इस -12 लेंगे तो हमें -3 आंसर मिलेगा। तो समझ में आए फिल इन द ब्लैंक्स कैसे किए? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Okay, now next question. Fourth question. Write 5 pairs of integers a, b such that a divided by b is equal to -3. One such pair is 6 and -2 because 6 divided -2 is equal to -3. मतलब हमको 5 ऐसे पेयर्स लिखने हैं इंटीजर्स के, a और b, दो इंटीजर्स ऐसे लेने हैं कि अगर मैं उनको डिवाइड करूं तो मुझे हमेशा आंसर -3 मिले। एक करके दिखाए कि अगर एक इंटीजर 6 है और दूसरा इंटीजर -2 है तो 6 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू -3। तो ऐसे हमें 5 पेयर्स बनाने हैं। ये कुछ भी हो सकते हैं, आप अपनी मर्जी से ही बना सकते हो। मैं जो 5 पेज बता रही हूँ वो ये है। फर्स्ट 24 -8, तो 24 डिवाइडेड बाई -8, तो 8 3 जा 24, पर अनलाइक इंटीजर्स है
तो साइन किसका आएगा, माइनस का। सेकंड पेयर लिया मैंने, -12 4, -12 को 4 से डिवाइड किया तो अगेन दे आर इन अनलाइक इंटीजर्स, तो 4 3 12 -3। नाउ थर्ड 15 -5, 15 divided by -5, they are also unlike integers, तो 5 3 15 -3। 18 और -6, तो 18 divided by -6, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अनलाइक इंटीजर्स, तो 6 3 18, तो आंसर इज -3। 60 और -20, तो 60 divided by -20 इज इक्वल टू -3, 20 3 60 और -3, तो सबका सॉल्व करके क्या आया, -3। तो ये और भी आप बना सकते हो, जैसे -12 और 4, तो 4 3 12, तो आंसर इज -3। -6 और 2, तो 2 3 6 -3। -9 और 3, 3 3 9, तो -3। 9 और -3, 3 3 9, अगेन इट इज -3। 21 और -7, तो 7 3 21, पर साइन -1, क्योंकि अनलाइक इंटीजर, एक पॉजिटिव लेना है और एक नेगेटिव लेना है, अनलाइक इंटीजर्स लेने हैं दो, और उनको इस तरीके से डिवाइड करना है कि उनके आंसर -3 आए। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट, द टेम्परेचर एट 12 noon was 10 degrees centigrade above zero. If it decreases at the rate of 2 degrees centigrade per hour until midnight, at what time would the temperature be 8 degrees centigrade below zero? What would be the temperature at midnight? दो क्वेश्चन पूछे हैं। क्या दिया है कि दोपहर को 12 बजे जो टेम्परेचर था वो 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर था। तो 0 से जब कोई चीज ऊपर होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव, और 0 के जब कोई चीज नीचे होती है तो क्या होती है, नेगेटिव। तो वो बोल रहे हैं कि 12 बजे जो टेम्परेचर था वो 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर था, मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब वो पर आवर, मतलब हर घंटे 2 डिग्री सेंटीग्रेड गिर रहा है। मतलब जैसे 12 नून पे वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो 12 के बाद 1 PM बजेगा तो 1 बजे वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया, फिर नेक्स्ट 1 आवर के बाद 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया, फिर नेक्स्ट आवर के बाद 2 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे हर घंटे वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड घटता जा रहा है, मतलब डिक्रीज होता जा रहा है। तो कितने बजे टेम्परेचर 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो जीरो, मतलब जीरो के नीचे 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक कब पहुंच जाएगा, एंड व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, और रात को 12 बजे क्या टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, टेम्परेचर एट 12 noon was 10 डिग्री सेंटीग्रेड अबव जीरो, दैट इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड पॉजिटिव, जीरो के ऊपर जो टेम्परेचर होता है वो पॉजिटिव, और जीरो के नीचे जो डिक्रीज होता जा रहा है वो नेगेटिव। नेक्स्ट, रेट ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर पर आवर, हर घंटे टेम्परेचर कितना कम हो रहा है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड। नंबर ऑफ आवर्स फ्रॉम 12 noon टू मिडनाइट, अब दोपहर के 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक का टेम्परेचर निकालना है, तो दोनों के बीच में कितने आवर हो गए, 12 आवर्स हो गए। ओके, सो फर्स्ट चेंज इन टेम्परेचर इन 12 आवर्स, तो 12 घंटे में कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, हर घंटे कितना चेंज हो रहा है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, पर कैसा, नेगेटिव, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, -2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चेंज इन टेम्परेचर इन 12 आवर इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई -2। समझ में आ रहा है क्या, दोपहर के 12 बजे जो टाइम था वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड था पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि जीरो लेवल से ऊपर था। अब हर घंटे 2 डिग्री सेंटीग्रेड घटता चला गया, मतलब माइनस में, तो माइनस ये डिक्रीज रेट ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर पर आवर इज 2 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब -2 डिग्री सेंटीग्रेड होगा ना, क्योंकि वो घटता जा रहा है। और 12 नून से मिडनाइट 12 बजे तक कितने आवर्स होते हैं, 12 आवर्स, तो 12 आवर्स में कितना टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस हो जाएगा, तो 12 मल्टीप्लाई बाय -2। यहाँ आप देखोगे मैम ने 2 लिखा और यहाँ माइनस क्यों लिखा, क्योंकि मैं बता रही हूँ वो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज जब कोई चीज होती है तो वो माइनस में ली जाती है। ठीक है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय -2, 12 2 24, -24 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कितना टेम्परेचर कम हो गया दोपहर के 12 बजे से लेके रात को 12 बजे तक, -24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अब 12 और नून को कितना था, तो टेम्परेचर एट मिडनाइट, तो मिडनाइट पे कितना टेम्परेचर होगा, दिन के 12 बजे कितना टेम्परेचर, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, प्लस कितना टेम्परेचर कम हो गया,
-24 डिग्री, दोनों का टेम्परेचर प्लस करना पड़ेगा ना। दोपहर को 12 बजे बोला है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, अब 12 घंटे में कितना टेम्परेचर गिर गया, -24 डिग्री सेंटीग्रेड घट गया। तो दोनों को प्लस किया, तो बाहर प्लस का साइन, अंदर का साइन चेंज नहीं होता है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 24 - 10 इज इक्वल टू -14 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों? क्योंकि 24 बड़ा है 10 से, इसलिए माइनस का साइन आएगा। तो समझ में आया? तो रात को 12 बजे कितना टेम्परेचर होगा, -14 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमें मिल गया इसका, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। टेम्परेचर एट मिडनाइट इज -14 डिग्री सेंटीग्रेड। अब उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि एट व्हाट टाइम वुड बी द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो जीरो, कि कितने बजे 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे टेम्परेचर होगा। तो हेंस द रिक्वायर्ड टेम्परेचर एट मिडनाइट इज -14 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो बता दिया कि रात को 12 बजे कितना टेम्परेचर होगा, -14 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन +10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड -8 डिग्री सेंटीग्रेड। 12 बजे दिन को कितना टेम्परेचर था, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और वो बोल रहे हैं कितना टेम्परेचर 0 के नीचे 8 डिग्री सेंटीग्रेड कितने बजे होगा। तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड -8 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 8 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 18 डिग्री सेंटीग्रेड। टोटल टेम्परेचर कितना हो गया, 18 डिग्री सेंटीग्रेड। नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड, तो 18 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हर आवर में कितना टेम्परेचर गिर रहा था, 2 डिग्री। 18 को 2 से डिवाइड किया तो 2 9 जा 18, तो 9 आवर्स। तो टाइम आफ्टर 9 आवर्स फ्रॉम 12 नून, 12 बजे के बाद से 9 घंटे कितना होता है, 9 PM। इसका मतलब कितने बजे 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होगा, रात को 9 बजे। तो क्वेश्चन समझ में आया? इसमें क्या दिया था, इसमें दिया था कि दिन में 12 बजे जो है वो 10 डिग्री टेम्परेचर है, 0 से ऊपर मतलब प्लस। टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सेंटीग्रेड अबव 0, दैट इज +10 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर इफ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर, अब उसके बाद हर घंटे 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गिरता जा रहा है। तो जब गिरता है कोई चीज या कम होता है या डिक्रीज होता है तो वो हो जाता है निगेटिव में, है ना। तो एट व्हाट टाइम वुड बी द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो जीरो, कितने बजे 0 से नीचे 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, एंड रात को 12 बजे कितना टेम्परेचर होगा। तो व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, 12 नून को 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, रेट ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर पर आवर क्या है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब हर घंटे कितना गिर रहा है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड गिर रहा है। तो अब अब हमें रात के 12 बजे का टाइम निकालना है, तो दिन के 12 से लेकर रात के 12 बजे तक कितने घंटे हो गए, 12 आवर्स। तो चेंज इन टेम्परेचर इन 12 आवर इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई -2। -2 मैंने बताया क्यों लिया, क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है, हर घंटे 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब माइनस में। तो 12 2 जा 24, -24 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। टेम्परेचर एट मिडनाइट, तो नून को कितना था, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, प्लस टोटल टेम्परेचर कितना आया, -24 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों को प्लस किया, प्लस माइनस माइनस होता था, तो हमारा आ गया 14 डिग्री सेंटीग्रेड, कि रात को 12 बजे -14 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। अब ये बोल रहे हैं कि कितने बजे -8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। तो डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन -10 डिग्री सेंटीग्रेड +10 डिग्री एंड -8 डिग्री सेंटीग्रेड, उनका डिफरेंस निकाला। तो माइनस बाहर का साइन है तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, तो हो जाएगा प्लस। नाउ 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 8 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 18 डिग्री सेंटीग्रेड। नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड, तो 18 को हमने किससे डिवाइड कर दिया, 2 से। क्यों? क्योंकि पर आवर जो है 2 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज हो रहा था टेम्परेचर, तो 2 9 जा 18, तो 9 आवर्स। 9 आवर्स के बाद जो टेम्परेचर होगा वो 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा। तो नून के 12 बजे से 9 घंटे कितना होता है, रात के 9 बजे। इसका मतलब टाइम आफ्टर 9 आवर्स फ्रॉम 12 नून इज इक्वल टू 9 PM। समझ में आया? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ इन अ क्लास टेस्ट +3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer and no marks for not attempting any question। मतलब अगर एक क्लास टेस्ट हुआ, अगर करेक्ट आंसर है तो +3 मार्क्स मिले, और अगर गलत आंसर हुआ है तो उसमें -2 मार्क्स मिले, और अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया है तो उसमें 0 मार्क्स मिले। तो राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स, राधिका को टोटल 20 मार्क्स मिले। If she has got 12 correct answer,
हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। क्या दिया है क्वेश्चन में कि अगर आपका क्लास टेस्ट में अगर आपका क्वेश्चन सही होता है तो उसमें आपको +3 मार्क्स मिल रहे हैं, और आपका अगर आंसर गलत हो गया तो -2 हो जा रहे हैं। और अगर कोई आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया तो उसमें आपको 0 मिल रहा है। राधिका ने 20 मार्क्स स्कोर किया और उसने 12 करेक्ट आंसर किए थे, तो कितने क्वेश्चंस उसने इनकरेक्ट किए? हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। और दूसरा क्वेश्चन है, मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट दो शी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर। मोहिनी को माइनस में मार्क्स मिले 5 -5, जबकि उसने 7 करेक्ट आंसर किए थे। हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। दोनों में हमें क्या निकालना है कि दोनों ने कितने इनकरेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। तो फर्स्ट करेंगे राधिका का क्वेश्चन। व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? +3 मार्क्स आर गिवन फॉर ईच करेक्ट आंसर, -2 मार्क्स आर गिवन फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, 0 मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग क्वेश्चन। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये हमें क्वेश्चन में ही दिया है ना। नाउ मार्क्स obtained by राधिका फॉर 12 करेक्ट आंसर। उससे कितने आंसर करेक्ट हुए? 12। तो एक करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स है? +3। तो 12 के लिए कितने होंगे? 12 मल्टीप्लाई बाय +3 इज इक्वल टू 36। इसका मतलब उसको 36 होने चाहिए, है ना। मार्क्स obtained by राधिका फॉर करेक्ट आंसर इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 36। टोटल मार्क्स obtained by राधिका 20, लेकिन राधिका को कितने स्कोर हुआ आया है? 20। So therefore marks obtained by Radhika for incorrect answer is equal to 20 minus 36। 20 उसका टोटल स्कोर आया है। अगर उसने 12 करेक्ट आंसर किए तो उसके हिसाब से उसके 36 मार्क्स होने चाहिए। तो इनकरेक्ट आंसर कितने हुए? तो टोटल में से जो टोटल उसका स्कोर है 20, उसमें से हमने 36 को माइनस किया। अब प्लस माइनस माइनस, तो 36 से 20 माइनस 16 बचा माइनस का। क्यों? क्योंकि 36 बड़ा था। समझ में आ रहा है? क्यों 20 से? क्योंकि 20 उसका फाइनल स्कोर है। उसका जो फाइनल स्कोर आया है वो क्या आया है? 20। और उसने कितने करेक्ट आंसर किए थे? 12। तो 12 अगर करेक्ट आंसर किए हैं और एक करेक्ट आंसर के लिए +3 है, तो 12 के लिए टोटल कितने होने चाहिए थे? 12 3 36, है ना। 36 होने चाहिए, लेकिन उसका जो स्कोर आया है वो कितना आया है? 20। तो मार्क्स ऑब्टेन बाय राधिका फॉर इनकरेक्ट आंसर, तो इनकरेक्ट आंसर के लिए उसने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए? -6। और एक इनकरेक्ट आंसर के लिए कितना मार्क्स है? -2। तो टोटल जो इनकरेक्ट उसका स्कोर आया है -16, उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे? -2 से। अब दोनों इंटीजर्स कैसे हैं? लाइक इंटीजर्स, बोथ आर लाइक इंटीजर्स। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड 2 8 16। हेंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर इज 8। इसका मतलब उसके कितने आंसर रॉन्ग हुए थे? 8। समझ में आया? क्या दिया था? फॉर करेक्ट आंसर +3, फॉर इनकरेक्ट आंसर -2, अगर अटेम्प्ट ही नहीं किया तो 0। राधिका का जो टोटल स्कोर आया है वो 20 आया है, जबकि उसने 12 करेक्ट आंसर किए थे। तो कितने उसने इनकरेक्ट किए वो फाइंड करना था। तो पहले हमने जो उसने करेक्ट आंसर किए 12, उसके हिसाब से उसके कितने मार्क्स आने चाहिए? 36। तो क्योंकि एक के लिए +3 है तो 12 3 36, लेकिन उसका फाइनल स्कोर कितना है? 20। तो हमने पहले क्या निकाला? मार्क्स ऑब्टेन बाय राधिका फॉर इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर के लिए उसे कितने मार्क्स थे? तो टोटल स्कोर में से जो उसके करेक्ट स्कोर है उसको माइनस कर दिया। तो 20 - 36 इज इक्वल टू -16। उसका मतलब उसका इनकरेक्ट स्कोर कितना था? -16। और एक इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए उसको कितने मार्क्स मिलने थे? -2। तो टोटल स्कोर को हमने एक इनकरेक्ट के स्कोर से डिवाइड कर दिया, तो आंसर आया 8। तो इसका मतलब उसके कितने आंसर रॉन्ग हुए थे? 8 आंसर रॉन्ग हुए थे, इसलिए उसका जो फाइनल स्कोर रह गया वो कितना हो गया? 20। ओके, नाउ नेक्स्ट मोहिनी। मोहिनी का टोटल स्कोर कितना किया उसने? -5। कितना किया है? -5। तो मार्क्स ऑब्टेन बाय मोहिनी फॉर 7 करेक्ट आंसर। उसके कितने आंसर करेक्ट हुए थे? 7। तो 7 और एक करेक्ट आंसर के लिए +3, तो +3 सो मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 7 3 21। तो उसके कितना होने चाहिए स्कोर? 21। लेकिन उसने कितना टोटल स्कोर आया उसका? -5। तो -5 - 21, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तो हो गया 26। So number of incorrect answer is equal to -26
है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन किसका रहता है, माइनस का ना, तो -5 -21 इज इक्वल टू -26. सो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, ये जो इसका इनकरेक्ट स्कोर आया है उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, -2 से. क्यों, क्योंकि फॉर वन इनकरेक्ट क्वेश्चन आंसर, फॉर वन इनकरेक्ट आंसर मार्क्स इज -2. तो टोटल इनकरेक्ट स्कोर को -2 से डिवाइड किया, बोथ आर लाइक इंटीजर्स, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, आंसर आया 13. तो देयरफॉर मोहिनी डिड 13 क्वेश्चंस इनकरेक्टली, मतलब उसने गलत उसके ज्यादा हो गए और जो सही थे वो कम हुए, इसलिए उसका स्कोर कहाँ पहुंच गया, माइनस में पहुंच गया. और जो राधिका का स्कोर था, राधिका ने क्या किया था, राधिका के क्वेश्चंस कितने करेक्ट हुए थे, 12, और इनकरेक्ट कितने होते उसके 8, इसलिए उसका जो स्कोर आया वो पॉजिटिव में आया. तो समझ में आया ये क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट. An elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meter per minute. If the descent starts from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach -350 meter? एलिवेटर आपने देखा है, जब कभी खुदाई करते हैं, नीचे खुदाई, जमीन खोदनी हो, नीचे नीचे खोदने के लिए से मशीन जाती रहती है, उसे एलिवेटर बोलते हैं. ठीक है, तो एलिवेटर जो है वो 6 मीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में वो 6 मीटर जाता है नीचे. जो एलिवेटर है वो नीचे जो जा रहा है वो 1 मिनट में 6 मीटर नीचे जाता है. ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि वो अगर उसने ग्राउंड लेवल के 10 मीटर के ऊपर से स्टार्ट किया था तो नीचे जाने में -350 मीटर जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, हमें टाइम निकालना है. तो देखो, द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द एलिवेटर इज एट 10 मीटर अबव above the ground level. मतलब ग्राउंड लेवल से 10 मीटर ऊपर है एलिवेटर. डिस्टेंस मूव बाय द एलिवेटर बिलो द ग्राउंड लेवल, और कितने तक नीचे जाना है उसको, -350 मीटर, है ना. डिस्टेंस मूव बाय द एलिवेटर बिलो द ग्राउंड लेवल के कितने नीचे तक जाना है उसको, 350 मीटर तक नीचे जाना है. तो टोटल डिस्टेंस मूव बाय द एलिवेटर 10 पर वो है, 350 उसको नीचे जाना है, तो टोटल कितना हो गया, 360 मीटर. ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमने निकाल लिया. यहाँ माइनस में क्यों दिया है, क्योंकि उन्होंने बताया है कि वो ग्राउंड लेवल के नीचे तक -350 मीटर तक अगर वो जाएगा तो उसको कितना टाइम लगेगा. ठीक है, तो प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द एलिवेटर इज एट 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, इसका मतलब ग्राउंड लेवल के 10 मीटर उसकी प्रेजेंट पोजीशन है, और उसको कितना नीचे मूव करना है, 350 मीटर. The total distance moved by the elevator 350 plus 10, तो it is 360 मीटर. रेट ऑफ डिसेंट क्या दिया है, 6 मीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 6 मीटर नीचे जाता है. टोटल टाइम टेकन बाय द एलिवेटर, टोटल डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम दिया है, तो 360 टोटल डिस्टेंस है, उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 6 से. तो 6 से डिवाइड, 6 6 जा 36 and 0, तो 60 मिनट्स आया. 60 minutes is equal to 1 hour. Hence the required time is equal to 1 hour. मतलब वो एक घंटे में ग्राउंड लेवल के नीचे पहुंच जाएगा -350 मीटर तक. समझ में आया क्वेश्चन क्या दिया था इसमें. ये एक माइन शेफ्ट, मतलब माइन की खुदाई चल रही थी, उस खुदाई को एलिवेटर खोद रहा है, तो वो ग्राउंड लेवल के नीचे जो जा रहा है वो 1 मिनट में 6 मीटर खोद रहा है ना. और ग्राउंड लेवल के वो ऊपर 10 मीटर से स्टार्ट करता है, और कितना जाना है, 350 नीचे जाना है. तो टोटल डिस्टेंस पहले फाइंड कर लिया, तो 10 + 350 360 डिस्टेंस हो गया ग्राउंड लेवल के ऊपर से लेके ग्राउंड लेवल नीचे जहां तक जाना है. और टाइम क्या दिया है उन्होंने, एलिवेटर कितना लेता है, मतलब 1 मिनट में 6 मीटर जाता है, तो टोटल डिस्टेंस को इससे डिवाइड कर दिया 6 से, तो आया हमारा 60 मिनट. 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर. तो हेंस द रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू 1 आवर. सो हमारी एक्सरसाइज पूरी होती है यहाँ पर. इसका मैं PDF भेजूंगी, ये आपको नोटबुक में लिख लेनी है. तो फर्स्ट चैप्टर आज हमारा फिनिश होता है. ठीक है, अब जो यूनिट टेस्ट होने वाला है उस पर यही चैप्टर आने वाला है, तो आपको अच्छे से कर लेना है, ध्यान से समझ के. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.